میں ایک واقعہ آپ کے حوالے کروں. میں ایک مدت کی جگہ ہے پورنیہ، 18 سال تک لگاتار میں وہاں گیا ہوں. وہاں کی بادشاہت آج جو کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے، ان کا نام ہے راجکماری میرا دیوی. پورنیہ وہ رہتی لندن میں. میں کہیں جانا چاہتا ہوں، لندن میں رہتی ہیں. حکومت ابھی بھی ان کی پورنیہ میں باقی ہے. 10 محرم کو وہ ہر سال لندن سے آتی ہیں پورنیہ میں. جانتی ہو کیوں؟ یہ آگے آگے جو گزرا جا رہا ہے اس کے قدموں کو دودھ سے دھونے. میں نے ان سے ملاقات کی. میں نے کہا آپ کو حسین سے اتنی محبت ہے کہ آپ لندن سے یہاں صرف اس لیے آتی ہیں کہ گھوڑے کا جو حسین سے منسوب ہے اس کا پیر دھوئے. ان کا جملہ سن لیجئے گا. انہوں نے ایک جملہ کہا، مولانا حسین صرف آپ کے نہیں ہیں. میں نے کہا میں نے یہ کہاں کہا کہ حسین صرف میرے ہیں. انہوں نے کہا سن لیجئے، میں جو کچھ ہوں اس حسین کے گھوڑے کے وسیلے سے ہوں. جب اس معیار پہ انسان اترتا ہے، اب کہنے دیجئے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا. ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں سلام ہے اس ملک کا جس پر آنے کی تمنا حسین ابن علی نے کیا تھا. ماتھر کہتے ہیں کاش میرا حسین یہاں آ جاتا، ہم حسین کو دیوتا کی طرح مانتے، پھر کوئی پیاسا مارا نہیں جاتا. یہ ایک ہمارے ہندو بھائی کا جذبہ ہے کہ اگر حسین کربلا سے یہاں آگے ہوتے. آپ کو بتائیے نا، یہ ملک مسلمانوں کا نہیں، یہ ملک حسین کا نہیں، لیکن ہر نوجوان حسینی ہے. ہر ہندو کہتا ہے کہ ہم حسینی ہیں. ماتھر کہتے ہیں کہ ہمارے پیشانی پہ لگائے گئے تلک پہ نہ جاؤ. یہ تلک تو ہے حسین کے خون کا دھبا نہیں. یعنی کہہ کے ماتھر نے بتایا کہ ہم ہندو ہیں لیکن دلوں میں حسین کو بتاتے ہیں. یہی میرا یہاں سے اعلان ہے. اے دنیا والوں، ذرا ہندوستان کی سرزمین پہ آ کے دیکھو ہندوستان میں کیسے لوگ زندگی گزارتے ہیں. ہندوستان ایک چمن ہے، ہندوستان ایک باغ ہے، اور اچھا باغ وہی ہوتا ہے جہاں طرح طرح کے پھول کھلتے ہوں. اگر صرف ایک قسم کا پھول ہو تو باغ اچھا نہیں لگتا، چمن اچھا نہیں لگتا. چمن وہی اچھا ہے جہاں طرح طرح کے پھول ہو. ہندوستان ایک باغ ہے جس کے پھول کا نام ہندو ہے، جس کے پھول کا نام مسلمان ہے، جس کے پھول کا نام عیسائی ہے، جس کے پھول کا نام جین ہے، جس کے پھول کا نام سکھ ہے. اور یہ سب ایک جگہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو اچھا گلدستہ بنتا ہے. ایک رنگ کے پھول کا تو گلدستہ نہیں بنتا. ہندوستان وہ گلدستہ ہے جس میں ہر طرح کے پھول لگے ہیں. دوسری بات ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں، مسلمان بھائیوں، ہم میں تفرقہ ڈالا جا رہا ہے. یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے. ہم نہ شیعہ، نہ سنی، نہ دیوبندی، نہ بریلوی. ہمارا صرف ایک پلیٹ فارم ہے، اور وہ پلیٹ فارم یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارا صرف ایک پلیٹ فارم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر آ کر دنیا کو بتائیں کہ ہم اس محمد کے ماننے والے ہیں جہاں ہنسا نہیں، جہاں اتیاچار نہیں، جہاں ظلم نہیں. ایک دھبا لگتا ہے کہ دہشت گرد مسلمان ہے. یاد رکھنا، جہاں دہشت گردی پائی جاتی ہے، جہاں آتنکواد پیدا ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں. مسلمانوں کے یہاں دہشت گردی نہیں ہوتی، مسلمانوں کے یہاں آتنکوادی نہیں پیدا ہوتے. آتنکوادی یزیدیوں کیا پیدا ہوتے ہیں. جو بھی آتنکوادی ہے اس دور کا یزید ہے، راون ہے. یزید حسین سے لڑا تھا،
हमारे यहाँ जुल्म नहीं है, हम जुल्म के पुजारी नहीं है। और करबला में बहत्तरों ने अपने गले को कटा के बताया हम सर दे सकते हैं लेकिन जुल्म के सामने झुक नहीं सकते। दो जुमले मसाइल के मैं बयान करना चाहता हूँ। पीछे ताज़िया है, आगे अलम है। ये जानते हो अलम किसका है? जिसके नाम से ये अलम मंसूब है उसे अब्बास कहते हैं। इनकी बहादुरी के लिए सिर्फ एक जुमला काफी है। हुसैन ने सिर्फ इन्हें इजाजत दे दी होती तो करबला में कोई शहीद नहीं होता। इतने बहादुर, इतने जरी थे अब्बास, लेकिन हुसैन ने इनकी तलवार को अपने पास रखा, अपनी बेटी सकीना का मस्कीदा दे दिया और कहा अब्बास अब मस्कीदा है और तू है। आप देखेंगे कि अल्लाह के फरेरे के साथ एक छोटा सा मस्कीदा लगा हुआ है। ये मस्कीदा ऐलान करता है कि चचा और भतीजी में कैसे मोहब्बत है। चचा ने अपने बालों को इस भतीजी के ऊपर निछावर कर दिया और जब पानी खेमे में न ला सका ना, देख मतलब आवाज दी मौला हुसैन मुझे खेमे में न ले जाइएगा। सबके जनाजे खेमे में आए हैं, अब्बास का जनाजा नहीं आया। जानते हो क्यों? इसलिए कि अब्बास ने कहा था जो शर्म महसूस हो रही है अपनी भतीजी से कि उसके लिए पानी का इंतजाम न कर सका। मेरा अज़ीज़ो, आखिरी लम्हात है रोज़े आशूर के। मैं मकसूद अपने चाहने वालों के, हुसैन के चाहने वाले शियों से कहना चाहता हूँ, शियो अपने इमाम को अलविदा कहना है। चंद लम्हे जब आशूरा बदलेगा शाम गरीबा में, अज़ीज़ो जब नबी खेमे से उस खेमे में जाएगी, कोई न होगा आप क्या जमा हुए हैं ना, तो आए यहाँ से आवाज से या हुसैन अगर हम करबला में होते तो अपनी जान आप पर निछावर करते। बीबी ज़ैनब अगर हम होते तो कोई बेटा न छीनता। अज़ीज़ान गिरामी आखिरी जुमले सुनिए और अलविदा करिए। आपने सुना है मैं इंसानियत से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अगर किसी से कोई बैर हो, कोई दुश्मनी हो तो कहां तक जाएंगे आप? आमने सामने लड़ाई करेंगे, तलवार चलाएंगे नहीं ना। लेकिन सामने वाला अगर कोई छोटा सा बच्चा हो तो आपसे एक सवाल है, चाहे आप किस धर्म के मानने वाले हो, छोटे बच्चे को जुल्म कीजिएगा नहीं कीजिएगा, कहिएगा इस बच्चे से क्या मतलब। लेकिन हाय करबला में नबी का कलमा पढ़ने वाले नाम हाथ मुसलमान, नबी के नवासे के फर्जंद अली असगर जिसकी उम्र सिर्फ 6 महीने की थी, उसे तीर मार रहे थे। 4 साल बेटी थी हुसैन की जिसे सकीना कहते हैं। आप बताइए औरतों पे हमला करना कैसा है? कोई भी गैरतदार इंसान जो इंसानियत रखता हो वो मर्दों से तो लड़ सकता है, औरतों पे जुल्म नहीं कर सकता। लेकिन ये ऐसे नाम नहाद मुसलमान थे जो कलमा नबी का पढ़ रहे थे और नबी की नवासी के सर से चादर छीन रहे थे। हुसैन की 4 साला बेटी को तमाचे लगा रहे थे। मैं आखिर में कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी मजहब हो, हर मजहब में दरिंदे हो सकते हैं, हर मजहब में दरिंदे हो सकते हैं और दरिंदों की बिना पर पूरे मजहब को पूरा नहीं कहा जा सकता। यजीद मुसलमान था, शिमर मुसलमान था, हुरमुला मुसलमान था, जिसने ज़ैनब के सर से रेदा छीनी वो मुसलमान था। लेकिन मुसलमान होना इस बात की दलील नहीं है कि हर मुसलमान ऐसा होता है। अगर यजीद जैसे लोग हैं तो हम जैसे आज़ादार भी हैं। और यजीद ने ज़ैनब के सर से रेदा छीनी, हमें आके क्या ज़ैनब की सना रहे हैं। हम जालिम कोई भी हो, यही हमारा पैगाम है। जहाँ तक हो इस पैगाम को पहुँचाइएगा कि हमारा पैगाम सिर्फ ये है कि जालिम का कोई भी मजहब नहीं,
जालिम का कोई मजहब नहीं होता, जालिम जिस मजहब में हो वो सिर्फ दरिंदा कहलाता है, चाहे वो रावण की शक्ल में हो या यजीद की शक्ल में। रावण भी दरिंदा था, यजीद भी दरिंदा। राम भगवान थे, हुसैन भी एक महापुरुष थे। हम राम को भी सलाम करते हैं इसलिए कि हम उस धरती में रहते हैं जहां हिंदुस्तान उस राम की नगरी है। और जानते हो, एक जुमला कह के आपने सहमत तमाम कर दूं। हुसैन से पूछा गया था कि आप हिंदुस्तान क्यों जाना चाहते हैं, वहां तो कोई मुसलमान भी नहीं है। तो हुसैन ने जुमला कहा था, हमें मालूम है कि वहां मुसलमान नहीं है, लेकिन वहां कृष्ण के पुजारी हैं। सलाम है मेरा कृष्ण को अपना भगवान मानने वालों का। हुसैन ने भी कहा मैं वहां जाना चाहता हूं जहां कृष्ण के पुजारी हैं। तो किसी ने पूछा कृष्ण के पुजारी आपकी क्या मदद कर सकते हैं? उनका जुमला ये था कि कृष्ण के पुजारी कुछ भी हो सकते हैं, हिंसा नहीं कर सकते। हुसैन का एक पैगाम है हिंदुओं के लिए कि जो भी कृष्ण और राम का पुजारी है वो हिंसा नहीं कर सकता। जो हिंसा करता है वो कृष्ण को नहीं मानता, वो राम को नहीं मानता। वैसे ही हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी एक पैगाम है, जो जुल्म करते हैं वो नबी को नहीं मानते, वो हुसैन को नहीं मानते। इसलिए कि नबी के मानने वाले जुल्म नहीं करते, हुसैन को मानने वाले जुल्म नहीं करते। मेरा सिर्फ यही पैगाम है, हम मिलजुल कर रहें और अपने वतन को कामयाब बनाएं। इस वतन के हर उस पड़ोसी को आंख दिखा के कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं, खबरदार हमारे मुल्क की तरफ आंख न उठाना, वरना हम तुम्हारी आंखें नोच डालेंगे। चाहे पड़ोसी कोई भी हो, हम हिंदुस्तानी हैं, इस पर हमें इफ्तिखार है। हम हुसैनी हैं, इस पर हमें इफ्तिखार है। हम उस देश के वासी हैं जो राम का देश है, इस पर भी हमें इफ्तिखार है और इस इफ्तिखार को बाकी रखना है। आए हम सब मिलके अपने मौला हुसैन को, अपने महापुरुष हुसैन को एक ताज़ियतनामा पेश करें, ये कह के हुसैन कल करबला में आपने पुकारा था, हम करबला में नहीं थे, लेकिन यहाँ बैरमपुर से आवाज देते हैं कि तेरी आवाज पे लब्बैक कहेंगे, चाहे हम शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे हिंदू हो। आए हम सब मिलके कहें लब्बैक या हुसैन, दुश्मनाने अहले बैत पर मातमे हुसैन। क्या
इसकी बना लो वीडियो बता दे।